So Hi guys. viewers, yesterday we did not have plenty of time to watch this show. Yeah. This is a 4 hours. We did not have time. So today we have gathered here for watching this spectacular show. Yeah, and we are at the side seat, so come along with us. This is one of the, what should I say, a must. From 11 o'clock the show starts. Yeah, so we are about to get in. And we are about to watch the Yeah, there's a water park also that Abhi wanted to visit, but since again it's too hot and it wouldn't be very comfortable for us at the moment, so we thought we might come to this side seat and watch the show. About to get tickets and enter, have a spectacular experience. So come along with us and see how well we enjoy this. Ticket charges are explained here for all of you who would like to follow my channel and who would want to find out about the timings of side seats. Just look at this. Here you will get the charge rate, so you can come along and enjoy this. So these are some of the information that I would like to share with my viewers. Yeah, we are here to get the tickets for this particular show. We will be able to see the Dwarka. Yeah, Dwarka Mai is under maintenance. Tickets? Just right there. Wonderful. Just see the Yeah, so today on Holi we are going to do something very special. The mother-son duo is back, you know, in the city of Shirdi. तो आप लोगों को मैं दिखाते चलूँ. Just look at the structure. Look at this. Come along with us. Abhi, take us in. Take us. Yeah. So he's taking us in, and here are we. We've entered this amazing, this spectacular. What would I say? A hall. We've got the tickets. Yeah. So he is going to get this done here. I also have my tickets. So yeah, Om Sai Ram. All done. We are all set to enter. Om Sai Ram. Thank you. Thank you. Om Sai Ram. Right side. Okay. Abhi right side we are supposed to go. So you have people to guide you, and I think it's a wonderful place. We should have actually come here yesterday. Yeah, so let's go to the right side for the show. It's got a very royal and very different sort of a look, right? So let me show you the floor plan here. You have the washrooms, you have the restaurant, you have Dwarka Mai, Sabka Malik Cake hai, Tirth Yatra, Lanka Dahan, merchandise zone. So the ambience and the music and all of this is absolutely amazing, guys. तो आ गए हम लोग इस मतलब इस एक्सपीरियंस का मज़ा लेने. We've come here for the show. Wow, this is lovely. Please come along, Abir. This is going to be a wonderful experience for us, I'm sure. Had we not come, we would have missed this, right? Of course. Yeah, this is something different. Yeah. One or two 5 Uh-huh. Yeah, so let's just get in and watch it, and this is a nice place to explore. So come along with us. This is a temple ride. This is a ride I believe that we are going to do. So let's see how it is like. Know that while watching this documentary show, हमें एक ऐसी बहुत खूबसूरत सी राइड भी करने को मिलेगी. आबिर, आपको कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमें राइड करने को मिलेगा, लेकिन जो सपनों में नहीं सोचा है, वही तो हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल, साईं बाबा के शहर में हम आए हैं, है ना? तो बहुत ही मज़ा आ रहा है. बिल्कुल ऐसे देखिए आपको क्यू में आपको खड़े करके, क्योंकि हम लोग दो थे. टेम्पल्स ऑफ इंडिया का एक राइड है जो अभी हम ये राइड का मज़ा लेने वाले हैं, माँ बेटा मिलके. गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है. Look at this. Wow. This is such a wonderful feeling, astounding, absolutely. My goodness me, this is beautiful. यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं, उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर. तो
पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। Look at this. This is spectacular. I'm out of words. भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी है। के स्वर्ण मंदिर में सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। भारत आ चुके हैं अब हम मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। Spectacular. I've never seen something so beautiful. 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 33,000 मूर्तियां हैं और यहाँ दर्शन के लिए रोज आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियाँ हमें पहुँचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है।
इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। मेरे चैनल के थ्रू से हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी ये यात्रा सफल हुई और आप हमें फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर देंगे। नमस्कार। This is just amazing, viewers. I'd never thought that I'll see something so beautiful and exquisite. Thank you for watching this. Do come to Shirdi and watch this for yourself.